Hi friends, this is Nishant. Namaste, and I welcome you all to this yet another TFS Talks. And as you can see the topic, indicators or no indicators. Well, honestly speaking, there are many things which I feel that a beginner or even an intermediate player should understand before moving ahead. And there are many such things which I am planning to cover in our future YouTube videos. Because I have realized something. I have realized that an audio or a video, they have better impact than the written word. So we have decided to make these videos and be little active on YouTube. So you must be noticing that. And I will make this video in English, right? So हम हिंदी में बात भी करेंगे and we will talk in English as well. So as to achieve a broader audience for this video. ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका benefit मिले. And coming on to this topic, indicators or no indicators. Well, we have been teaching a lot of beginners in TIC, right? And हर beginner अपने साथ कुछ ना कुछ preconceived notions लेकर आता है. Everybody has some biases. Everybody has some. See, nobody comes with a clean slate, right? So, as I always say, that my role in TIC or in TFS, my role is that of a potter. So my role is to make pottery out of the wet clay. But the condition is that the clay should be wet. If the clay is already cemented, right, there is nothing much left for me to do with it. So you are the clay and I want you to be wet. I want you to be moldable, right? And इसके लिए हम ये सब वीडियोस बना रहे हैं, इसके लिए हम ये सब बातें कर रहे हैं. And what I realize, what I feel, देखिए होता क्या है ना, जब आप सिखाना शुरू करते हैं तो आप खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं. So I have learned a great deal ever since I have started teaching. I have become a better person myself. I have become a better trader myself. मैंने खुद इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है काफी सारी चीजों में जब से मैंने सिखाना शुरू किया है. Because आपको जब कुछ सिखाना है, आपको कुछ आता है, when you know something and you want to apply it, all you need to do is just to apply it. But when you want to teach it, so first you have to think what you know, right? You have to articulate that knowledge that you already have into words. आपको sentences form करने हैं, आपको सोचना है कि सामने वाले को क्या नहीं आता, उसको मैं कैसे समझाऊं. And in this process, you learn a lot. So I have learned a lot and thank you for that. Thank you for giving me that opportunity so that I can learn, right? And what I wanted to mention is that learning when it comes to markets, when it comes to learning to trade, learning is tangible as well as intangible. So there are some tangible aspects that one needs to learn in terms of methods, in terms of techniques, in terms of the other day we talked about time frame, and previous to that we talked about correctives. So they are tangible things, right? But there are so many intangible things जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जो abstract ideas हैं. But वो ideas आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी learning complete होती है. क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम लोग ना ज्यादा ध्यान देते हैं tangible चीजों पे. We focus more on the things which we can utilize immediately. That is why most of the traders are so equipped, so busy with learning strategies, techniques and methods and whatnot, right? Because they think that is the key. But always remember, it is always the invisible which gives birth to the visible. Always. Take the universe for example, right? 99.999 whatever, I don't know, but I mean just to go to the extent of it, 99.9% of this universe is empty space, right? The matter just occupies a little space, and in that matter there are solar systems, there are galaxies and we and all that. But who empowers, who energizes this matter, that empty space, the energy? Look at a vessel, right? What is it that makes a vessel? Of course the clay makes a vessel, but the empty space inside that vessel makes that vessel. It gives the shape, it gives the function, utility to that vessel. Take a window, that wooden frame, yeah, that is a window, but that empty space between that actually gives the utility to that window. So it is always the invisible, the intangible that empowers, energizes, and accentuates the visible, the tangible.
वही केस है ट्रेडिंग के साथ भी। सिर्फ टेक्निक, स्ट्रेटेजी, मेथड्स वो सब समझने से ठीक है, कुछ हो जाएगा, आप किसी हद तक पहुंच जाएंगे, यू विल गो टू सम एक्सटेंट, बट द रियल डील इज टू हैव अ माइंडसेट। एज आई ऑलवेज से, यू कैन नॉट डू अनलेस यू बी। जब तक आप वो इंसान नहीं है जो इंसान वो काम कर सकता है, तब तक आप वो काम कैसे करेंगे? सो आपको पहले वो इंसान बनना है, एंड टू बिकम दैट इंडिविजुअल यू हैव टू हैव दोस काइंड्स ऑफ थॉट्स, दोस काइंड ऑफ belief systems, mindset. So in TFS, in TIC, my objective is to give both kinds of impetus, be it tangible, be it intangible, right? So when it comes to indicators or no indicators, this I would call it an argument or a tug of war, right? It's a very, very controversial topic. I mean, if you look at trading, there are so many bone of contentions. बहुत सारे बहस करने के मुद्दे हैं, मगर बहस करने से कोई आगे नहीं बढ़ता है। आगे लोग बढ़ते हैं एक्शन लेने से, क्लैरिटी से, समझने से, राइट? सो व्हेन पीपल स्टार्ट, द फर्स्ट बोन ऑफ कंटेंशन इज वेदर टू डू फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स। इसी में ही कई साल निकल जाते हैं, इसी में ही बहुत सारा टाइम पास होता है। सोशल मीडिया पे जाते हैं, इससे पूछते हैं, उससे पूछते हैं, बुक्स में ढूंढते हैं आंसर्स, इंटरनेट पे ढूंढते हैं, ब्लॉग्स, वीडियोस, न जाने क्या क्या, राइट? पहला तो वही है। तो उस पे भी वी हैव मेड अ डिटेल टॉक, right, which you can have the link on the top. So we talked about it in great detail, that why fundamentals, why technicals, when fundamentals, when technicals, and all that, and why technical analysis is a superior approach. So we have talked at length in that video, right? So please do watch that if you haven't. उससे आगे बढ़ते हैं. So once a person understands that yes, he has to learn technical analysis, then he gets into this loop, right, of whether I should use indicators or not, right? Because a person has no anchor, so he has no previous knowledge that he can utilize. So what he does is that he goes to different, as I said, social media accounts, and some guy is using price action, naked price action. कोई इंडिकेटर यूज कर रहा है, विद इन इंडिकेटर्स कोई RSI यूज कर रहा है, कोई मैकडी यूज कर रहा है, कोई ADX यूज कर रहा है, कोई बॉलिंजर बैंड यूज कर रहा है, कोई स्टोचैस्टिक्स यूज कर रहा है। अलग अलग चीजें हैं, वो आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं, राइट? एंड फाइनली होता क्या है कि जब आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, यू गेट टू अ कंक्लूजन कि ये सब है ही बेकार, राइट? क्योंकि फिर आप ब्लैक व्हाइट में सब कुछ देखते हैं कि या तो इंडिकेटर या नहीं इंडिकेटर, या तो यूज करना है या नहीं करना है। आइदर आई यूज इंडिकेटर्स और आई डोंट यूज इंडिकेटर्स। इस डिबेट में न जाने कितनी पोटेंशियल वाली जिंदगियां खराब होती हैं। ये डिबेट कि प्राइस एक्शन करूं या इंडिकेटर्स करूं, ये एक डिबेट है, और एक ये यूजलेस डिबेट है। और ये डिबेट क्यों पैदा होती है? ये डिबेट इसलिए पैदा होती है क्योंकि चीजों को होलिस्टिकली नहीं देखते, क्योंकि हम चीजों को फॉर्मुलिस्टिकली देखते हैं, इसलिए ये डिबेट पैदा होती है। इसीलिए सारी डिबेट्स पैदा होती हैं, बिकॉज वी ट्राई टू सी थिंग्स इन अ फॉर्मुलिस्टिक मैनर कि या तो ये है या ये है, राइट? सो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू डू दिस टॉक, एंड मैंने बहुत सारी भूमिका बनाई है इसको अब शुरू करने के लिए। क्योंकि देखिए, फिर वही बात है, मेरा आपको कोई मैसेज देना, मेरा आपको कोई टीचिंग देना तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक आप उस माइंडसेट में ही ना हो कि आप उसको समझ पाए, राइट? सो मी टीचिंग यू डज नॉट मैटर unless you are in that mindset, we are on the same plane, that what I am talking, you are getting it in the same tone. So that is why I have talked so much about, all of it. Now let's come to the topic. So indicators or no indicators. मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक पूरी यूजलेस डिस्कशन है, राइट? आप कोई इंसान अगर इंडिकेटर यूज नहीं करता है, if somebody just uses plain price action, there is nothing to glorify about it. If somebody uses indicators, there is nothing to demean, nothing to belittle. तो इंडिकेटर यूज करना आपको छोटा नहीं कर देता, और इंडिकेटर यूज ना करना आपको बड़ा नहीं कर देता। ये किसी तरह की कोई आर्गुमेंट नहीं है कि ये बेटर है या ये बेटर है। हर चीज का अपना एक यूज है। सो हम इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसको और डिटेल में वील टॉक अबाउट इट एंड अंडरस्टैंड द फैलेसी ऑफ दिस आर्गुमेंट, कि ये आर्गुमेंट गलत है ही क्यों, राइट? So as you know that because I tend to teach using analogies, because they are the easiest way to learn and teach, right? Easiest way to learn. Examples, illustrations, analogies,
बिकॉज कनेक्ट आता है, इमीडिएटली हम कनेक्ट करते हैं कि हम जो सीखना चाह रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं. सो हियर इट इज, लेट मी यूज एन एनालॉजी. लेट्स इमेजिन दैट यू हैव अ बैक एक, राइट. लेट्स इमेजिन कि आपकी बैक में पेन है, राइट. सो यू हैव अ बैक एक एंड now you must be wondering why I am talking about this, but you will get to understand. So imagine you have a backache and imagine you go to a doctor, rather you go to 3 doctors. So you go to doctor number A, you go to doctor B, and you go to doctor C, right. They all are 3 different doctors and you go to them. Let's understand, the prognosis and diagnosis and the treatment of all these 3 doctors. So I will read it for you. So doctor number A, he checks your back manually. वो आपको उल्टा लिटाकर आपकी बैक को चेक करता है, वो आपकी बैक पे नॉक करके देखता है, आपकी बैक को, he feels it and all that. He asks you questions in detail. वो आपसे बहुत डिटेल में क्वेश्चंस पूछता है, आपकी हैबिट्स के बारे में, आपके लाइफस्टाइल के बारे में, आपके डेली रूटीन के बारे में, आपको पेन कब से है, आपको क्या करने पे पेन होती है, ट्रिगर पॉइंट्स. So what you do when you feel the pain? When do you feel relaxed? What is your lifestyle like? All those questions. He looks at your posture. When you are talking to him, जब आप उससे बात कर रहे हैं, वो लगातार आपको देखता है, आपको ऑब्जर्व करता है. आपको पता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं लगता है, मगर वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है. वो ये देखना चाह रहा है कि इशू कहां है, राइट. He checks your eyes, nails and tongue for deficiencies etc. देखिए कितना अलग लगता है कि यार मेरी बैक में प्रॉब्लम है, बट द डॉक्टर इज चेकिंग माई आईज एंड नेल्स एंड टंग्स, राइट, माई टंग. Why? Because विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, और भी कई चीजें हो सकती हैं, कई मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से बैक पेन हो सकता है, और वो डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में नजर आती है, राइट. सो ये डॉक्टर नंबर ए है. डॉक्टर नंबर बी, he doesn't ask many questions. You go to him, you say that मेरी बैक में पेन है, I have a backache. He doesn't ask questions. He isn't much interested in knowing your history, your habits and all that. Rather, he takes your temperature, right? Yeah, funny. He takes your temperature and he takes your blood pressure. He uses a stethoscope, to check your pulse and all that. He does all of that like a normal general physician. So, doctor number B. Doctor C, he checks your back manually, just as doctor number 1. He asks questions about your habits, your history, your diet, just as doctor number A, right? 1. He checks everything that needs to be checked. He asks everything that needs to be asked, just like doctor number A, right? And then he orders an MRI for a specific region if required, right? क्या लेना देना है इस सब का ट्रेडिंग से या हमारे आज के टॉपिक से? बहुत लेना देना है. Just look at Dr. A. Dr. A is a pure price action player, right? He isn't using any indicator. Indicator means, let's say a stethoscope or a blood pressure machine or MRI or X-ray or CT scan. He isn't using any external tool, right? So he focuses on price action. उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पर है, आपकी पेन पर, आपकी बातों पर, आपकी हिस्ट्री, आपका पोस्चर, आपकी लाइफस्टाइल, राइट, आपका उठने बैठने का तरीका, आपकी हैबिट्स, आपके ट्रिगर पॉइंट्स, आपकी डेफिशिएंसीज जो बाहर से विजिबल हैं, राइट. डॉक्टर बी एक ऐसा ट्रेडर है जो कि सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड है, और इंडिकेटर भी कौन सा? जो उसने सीखा हुआ है. सो सिंस ही नोज हाउ टू टेक अ ब्लड प्रेशर एंड हाउ टू टेक अ टेम्परेचर, एंड मे बी ही नोज हाउ टू यूज अ स्टेथोस्कोप, सो ही यूजेस दैट इन एवरी केस. आप बैक पेन लेकर गए हैं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका प्राइस एक्शन समझने में. ही हैज नो इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग योर कोर इशू, understanding your body, your methods, your ways, your approach, nothing, your habits, diet, nothing. Why? Because he has a preset mind and he uses an indicator which he knows whether or not that indicator fits into that scenario. Doctor number C, he is a combination, right? So he checks your back manually just like Dr. A. He asks you questions, so he is focusing on price action. राइट, वो पूरी तरह प्राइस एक्शन पर फोकस कर रहा है. ही इज अंडरस्टैंडिंग योर डाइट, योर डेफिशिएंसीज, योर लाइफस्टाइल, योर मेथड्स, दैट हाउ यू टैकल योरसेल्फ, हाउ यू कैरी योरसेल्फ एवरी डे. ही इज गेटिंग दैट राइट. बट देन ही इज यूजिंग MRI फॉर फर्दर डायग्नोसिस, बिकॉज ही नोज दैट इवन इफ इट टचेस द बैक,
इवन इफ ही टेक स्टॉक ऑफ योर बैक, इवन इफ ही वो अच्छी तरह आपकी बैक को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, बट देयर आर थिंग्स विच ही कैन नॉट सी विद हिज नेकेड आई, राइट? टच करके मे बी ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड ही यूजेस MRI टू गो डीप. Indicator, but the right one, right? So what do you think, which doctor is best? मतलब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं एक पेन लेकर, कोई प्रॉब्लम लेकर, कुछ भी, पेट में दर्द है, राइट, सर में दर्द है, और डॉक्टर सिर्फ आपकी नब्ज चेक करता है, आपकी आंखों में देखता है और आपको दवाई लिख देता है, और मान लीजिए आप उससे ठीक भी हो जाते हैं, तो आप क्या, वो ग्लोरिफिकेशन हो जाएगी क्या उससे? इज इट समथिंग टू बी ग्लोरिफाइड कि देखो डॉक्टर ने तो टेम्परेचर तक चेक नहीं किया, डॉक्टर ने तो कोई टेस्ट भी नहीं बताया, बिना टेस्ट के उसने मुझे क्योर कर दिया? बट क्या सारी बीमारियां बिना टेस्ट के पता लग सकती हैं? तो वहां लिमिटेशन आ जाएगी. सो मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि द डॉक्टर जो कोई टेस्ट नहीं कर रहा है वो बेकार है. नहीं, मे बी ही विल वर्क वंडरफुली वेल इन सर्टेन सिचुएशंस, राइट, बट नॉट ऑल. अगर आपकी किडनी में स्टोन है, अगर आपका फैटी लीवर है, चलो फैटी लीवर तो बाहर से पता पैल्पेट करके पता लग जाता है, बट आपकी डिस्क में कोई इशू है, काफी सारी चीजें हैं जो बिना टेस्ट के पता नहीं लग सकती. आपको एक ट्यूमर है, वो ट्यूमर कैंसरस है या नहीं है, टच करके तो ट्यूमर पता लग सकता है, बट वो कैंसरस है या नहीं है, कोई टेस्ट तो कराना पड़ेगा ना. तो एक डॉक्टर है जो कोई टेस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ प्राइस एक्शन पर फोकस करता है, जो हो रहा है, जो आपको फील हो रहा है, आपकी बातें, आपका पोस्चर, वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, बट वो हर वक्त काम नहीं कर पाएगा, उसकी ये स्किल. एक दूसरा डॉक्टर है जो कि सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड है, वो हर बात पे एक्सरे, हर बात में MRI, हर बात पे स्टेथोस्कोप, हर बात पे टेम्परेचर, और गलत जगह पर यूज, जहां पर उसकी नीड भी नहीं है. आपको बैक एक है और वो आपका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है, राइट? आपको हार्ट का इशू है और वो आपको MRI बोल रहा है बैक का कराने को. सो दीज आर, कोई यूज ही नहीं है, बिकॉज ही इज यूजिंग द रॉन्ग थिंग एट अ रॉन्ग प्लेस, राइट? एंड देन देयर इज अ थर्ड डॉक्टर हु यूजेस प्राइस एक्शन. वो पूरी तरह समझ रहा है आपको इशू क्या है, वो टच कर भी देख रहा है, वो आपका लाइफस्टाइल भी देख रहा है, आपका पोस्चर भी देख रहा है, आपकी डाइट भी देख रहा है, बट देन ही अंडरस्टैंड्स दैट देयर आर थिंग्स विच आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड. सो ही ऑल्सो यूटिलाइजेस अ टूल, बट अ राइट टूल एट द राइट टाइम. सो ही इज यूजिंग एन इंडिकेटर, राइट? सो इस पूरी डिबेट से बाहर निकलिए. मेरा कहने का मतलब यह है कि इस पूरी डिबेट से बाहर निकलिए कि जो सिर्फ प्राइस एक्शन यूज कर रहा है, द पर्सन, द ट्रेडर हु इज जस्ट यूजिंग प्राइस इज अ वंडरफुल ट्रेडर, राइट? दैट ही इज द ग्रेटेस्ट ट्रेडर, एंड द ट्रेडर हु इज यूजिंग एन इंडिकेटर, ही इज अ फूल. इस पूरी डिबेट से बाहर निकलिए. इफ यू यूज प्राइस एक्शन एंड यू आर सक्सेसफुल, ओके, नथिंग लाइक दैट, बट कोई मेडल तो नहीं मिलेगा. इफ यू आर यूजिंग एन इंडिकेटर along with price action and you are successful, okay, इससे कोई बेइज्जती तो नहीं होगी. तो मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूं because I have seen it. I see beginners, I see even intermediate players, right? I see them attaching proud and insult with using indicators and not using indicators. That sir, that guy just uses price action. Wow. Oh, but he uses indicators. Get out of this debate. Price action, I mean in TIC, most of our members, they are able to trade just on the basis of price action, just on the basis of price action. But they know that there are certain attributes of price itself, which are not visible in naked price action, or maybe at that stage. So they use an indicator to accentuate प्राइस के उस एट्रीब्यूट को बाहर निकाल के लाने के लिए एक इंडिकेटर यूज करते हैं, बट कौन सा कहां पर यूज करना है वो पता होना जरूरी है. सो कोई बुराई नहीं है, कोई अच्छाई नहीं है, मगर होलिस्टिकली सोचना है. वी हैव टू टेक दिस मैटर होलिस्टिकली. ब्लैक व्हाइट नहीं हो सकता है, like I stated initially. It's not a matter of black and white. It's a matter of knowing when to use what. And now talking about indicators, let's move ahead. Talking about indicators. Indicators क्या है? What are indicators? Be it RSI or be it MACD or be it ADX. What are indicators? Well, indicators are certain data points which are derived from the price itself. Right? So यहां पर argument आ सकता है कि अगर indicators are derived from price itself, अगर indicator price में से ही आ रहा है, तो why to use them? Just see the price and you are good.
बट जैसा मैंने पहले कहा कि देर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ प्राइस एट सर्टेन स्पेसिफिक लोकेशंस, सिचुएशंस, जो नेकेड प्राइस में इतनी आसानी से नजर नहीं आते, कई बार एटलीस्ट बिगिनिंग और इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं नजर आते। प्राइस के ही एट्रीब्यूट हैं मगर वो प्राइस में नजर नहीं आते। उनके लिए अगर आप एक इंडिकेटर यूज कर लेंगे तो इट विल बिकम इजियर टू एक्सेंचुएट प्राइस की उस फीचर को, प्राइस के उस बिहेवियर को उभार के लाने के लिए यू कैन यूज सर्टेन इंडिकेटर इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ओवरऑल what I want to say is using an indicator is not bad if you know what to use and when to use. Not to use an indicator is not bad if you are being able to do it, but do not close yourself that I will not use it, right? Because there may be time, आप कितने ही अच्छे डॉक्टर हो जो नब्ज देखकर बीमारी बता सकता है, प्राइस एक्शन प्लेयर, मगर कहीं तो सिचुएशन आएगी जहां आपको एंडोस्कोपी भी करनी पड़ेगी, जहां आपको एक्सरे भी करवाना पड़ेगा, जहां आपको एमआरआई भी करवाना पड़ेगा। तो वो करवाने से आप कोई बेकार डॉक्टर नहीं हो गए कि अरे ये डॉक्टर तो एमआरआई करवाता है, इसको नजर नहीं आ सकता क्या? कुछ चीजें नजर नहीं आती हैं, राइट? तो इसी सेंस में समझिए इस पूरे गेम को। योर डिजायर टू फिगर आउट मार्केट सिनेरियो इज योर एक, लाइक योर बैक एक। आपको मार्केट को समझना है, आपको समझ नहीं आ रही है, ये एक तरह का पेन ही है, राइट? You have to think like a sensible and unbiased doctor. That is the most important thing. Unbiased. आपको अनबायस्ड रहना है। आपको यह नहीं सोचना है कि अगर मैं कोई इंडिकेटर यूज कर लूंगा, मतलब अगर मैं एमआरआई करवा लूंगा तो मैं बुरा डॉक्टर हो जाऊंगा। आपको यह नहीं समझना है कि अगर मैं कुछ टेस्ट नहीं करवाऊंगा, सिर्फ नब्ज देखकर बीमारी बता दूंगा तो मुझे कोई पद्मश्री मिल जाएगा। यह सब नहीं सोचना है। क्लियर रहना है, अनबायस्ड रहना है, और जिस चीज का जो जहां यूज हो उसको वहां यूज करना है, right? Indicators are like diagnosis tools such as CT scan or an MRI or an X-ray or even a stethoscope. So अगर एक डॉक्टर एक स्टेथोस्कोप भी यूज करता है, वो इंडिकेटर ही तो है कि नेकेड प्राइस एक्शन में उसको वो चीज नहीं समझ आई, और अगर आई भी है, but it is easier to use a stethoscope and understand the pulse immediately, right? Or use a blood pressure machine and use a stethoscope at the side and understand the integration of blood pressure and pulse. तो ऐसा नहीं है कि वो बिना वो यूज करे समझ नहीं आ सकता, मगर आसानी से अगर समझ आ रहा है तो उसमें क्या इशू है? यू यूज देम एज पर देयर रिक्वायरमेंट बट नॉट फॉर द सेक। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरे पास, डॉक्टर के पास अपनी बैक का इशू लेकर आए हैं तो मैं आपका टेम्परेचर चेक करूंगा क्योंकि मुझे तो वही इंडिकेटर आता है, राइट? ऐसे अब इसको समझिए क्या है ये। इट्स लाइक बीइंग अ ट्रेडर हु जस्ट यूजेस लेट्स से आरएसआई इन एवरी सिचुएशन, और somebody knows ADX and uses ADX in every situation. उससे क्या होता है, आप एक टेलर भी है ना, तो एक टेलर भी अलग अलग टूल्स यूज करता है। He uses a scissor to cut the cloth, right? He uses a measurement tape to take measurement. आप मेजरमेंट टेप से तो क्लॉथ कट नहीं कर सकते ना। तो ये क्लैरिटी लाने की जरूरत है। कोई भी टूल अच्छा या बुरा नहीं है, हर टूल का अपना एक यूज है, राइट? हर टूल का अपना एक मेथड है, एक वे है। आप बिना उन टूल्स के भी काम कर सकते हैं, वेल एंड गुड। बट अगर टाइम सेव करने के लिए आप उस राइट टूल को राइट जगह यूज कर रहे हैं तो भी वेल एंड गुड। सी, द की इज टू यूज द राइट टूल इन द राइट सिचुएशन, राइट? सो आई होप आपको यह सेंस समझ आ गई होगी कि इंडिकेटर्स यूज करना कोई बुरी बात नहीं है और इंडिकेटर्स यूज ना करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इंडिकेटर्स प्राइस में से ही डिराइव हो रहे हैं, राइट? मगर प्राइस में हर बार हर प्राइस का हर एस्पेक्ट सामने नहीं होता, राइट? जस्ट एज आप एक पेशेंट को टच करके उसकी सारी बीमारियां पता नहीं कर सकते, उसी तरह आप सिर्फ प्राइस को देखकर प्राइस के सारे एट्रीब्यूट्स पता नहीं लगा सकते। एक्सपीरियंस से लगा सकते हैं, मगर फिर भी अगर एक उस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को पता कराने वाला इंडिकेटर यूज करेंगे तो बड़ी हेल्प हो जाएगी, राइट? सो what is my stance? What is my take? My take is there is no debate. My take is that debating on such an aspect shows that you are a beginner. तो अगर कोई इंसान ये डिबेट कर रहा है तो पहले एक्सेप्ट करे कि हाँ एक्चुअली मैं गलत डायरेक्शन में ही जा रहा हूं, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एन एक्सेप्टेंस। आप ये एक्सेप्ट करिए कि हाँ मैं बिगिनर हूं, ये डिबेट गलत है। इस डिबेट में कई लोग फंसाते हैं सोशल मीडिया पर,
क्यों? क्योंकि या तो उनको अपना एक इंडिकेटर बेचना है या उनको अपना प्राइस एक्शन बेचना है। उस डिबेट में मत फंसिए। प्राइस एक्शन को किसी ग्लोरिफिकेशन के साथ मत जोड़िए, इंडिकेटर को किसी बेइज्जती के साथ मत जोड़िए। हर चीज का अपना एक टाइम है, एक प्लेस है, एक सिचुएशन है, right? And this is how you become a sensible trader, to have a holistic view about everything, right? So I hope this video added some sort of mindset, right? And some sort of clarity in you. जैसा कि मैंने कहा था, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा हूं मैं आपको इस वीडियो में। There is no strategy, no method, just mindset. I am making you into a person who can trade well. So this is that intangible aspect, and there are many others like, fear of missing out, like booking profits too early, too late, all that, booking losses too late and profits too early, all that. We will talk about all of them in, this video format. Because as I said, the impact of a video is more because you tend to remember. It registers faster, in your senses. So I hope that, with this, you got a fair idea of that how this entire debate that whether to use indicator or not is a false debate. It's a fallacy. ये अपने आप में एक useless debate है. आप एक ट्रेडर हैं, ट्रेडर का मतलब ही ओपन माइंड है. प्राइस एक्शन यूज करिए, बिना प्राइस एक्शन के तो इंडिकेटर में नहीं हो पाएगा. तो प्राइस एक्शन तो समझना ही है, मगर इंडिकेटर यूज कहां करना है? जहां प्राइस में ही प्राइस का ही कोई एट्रीब्यूट देखना है, तो वहां राइट इंडिकेटर राइट टाइम पर यूज करना है. राइट? तो अगर उसके बिना भी काम चलेगा तो भी ठीक है, यूज करना पड़े तो भी ठीक है. सो ओवरऑल क्या समझ आता है? ओवरऑल समझ आता है कि हैव अ होलिस्टिक व्यू. डू नॉट गेट, कोई कैंप नहीं है सोशल मीडिया पर कि आइदर आई एम विद दिस हैंडल और विद दैट हैंडल. उससे बाहर निकलिए, इस पूरी डिबेट से बाहर निकलिए. अपने आप को क्लीन, क्लियर, होलिस्टिक रखिए, एंड देयर लाइज द की. सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो एंड आई होप इट एडेड सम वैल्यू, राइट? एंड वी विल डू मोर ऑफ सच वीडियोज इन डेज टू कम, इन टाइम्स टू कम. एंड कुछ लोग टीआईसी के बारे में बात कर रहे थे, तो जस्ट अ क्विक वर्ड अबाउट दैट. We will open TIC gates very, very soon. And as I said the other day, few IPRs, intellectual property rights, are pending. We have got at least 4 of them. Few are pending, and just as soon as we get them, we will start it. Why IPRs? Because when you will get in TIC, you will know that there are so many things which are pure original work. So we have to protect that, right? And that is why there is a little delay. But sooner or later, in fact sooner, right, we will open the gates and we will see you there. Yeah, thank you, goodbye.